ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਜ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਜਦੇ ਆਪ ਸਾਵਧਾਨ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ ਹੋਏ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਮਹਿਰਮਤਾਂ ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਇਓ। ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਸੁਣਨ, ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਬੁਰਨ ਦਾ ਤਾਣ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਸੀਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜਪਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਦਿਵਸ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਇਆ। ਸੰਧਿਆ ਕੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਵਾਚ ਰਹੇ ਸਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬਚਨ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਾਲ ਕੌਤਕ ਜਾਂ ਬਾਲ ਚੋਜ ਕਹਿ ਦੇਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਹ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਲ ਚੋਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੰਡਲ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਆਏ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਦਕਾ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਆਏ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਸੰਵਾਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਕਾਰਜ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਾਂਧਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਨੇਊ ਦੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਵੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੰਵਾਦ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸੰਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ, ਵਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਅਸਰ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਾਥਾ ਸਾਖੀ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਰਤੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੋਂ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਬੈਠੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆ ਜਾਓ, 10 ਦਿਨ ਲਈ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਵਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ, ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਪਾਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸੰਕਲਪ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਉਮੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਥਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਚਨ ਓਨੇ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਨੇ ਜਿਨੇ ਇਹ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਸਨ। ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਤਵ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਬਣਤਰ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਬਸ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬਦਲ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਘਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੇਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਓਅੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਜੁਗਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ, 3 ਬੇਸਿਕ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮੰਦਾ ਕਰਤੱਵ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਰਤੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਕਿੰਨਾ ਅਲਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੀ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ CCTV ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ CCTV ਕੈਮਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ CCTV ਸਰਵਲਾਂਸ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲਟ ਸਾਵਧਾਨ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਮੰਦਰ 'ਚ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਲਰਟ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਵਕਤ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇਤਰ ਨੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ देर बाद सुहले की बाणी का पाठ होना है, तो तुक है छोटी जी, सहस तव नैन, हे अकाल पुरख वाहिगुरू तेरे हज़ारां नेत्र ने, तू हज़ारां नेत्रां दे राही मैनू देख रहा। तो जो ये ख्याल दृढ़ हो जाएगा कि मैनू हर थां ते हर वेले देखा जा रहा है, तो सुभावक कि फिर असीं वो काम करांगे जो सावधानी ते सुचेतता वाले ने, अलर्ट हो जाएंगे। कहने लगे दूजी गल ये देखना, प्रभु हर वक्त तैनू देख रहे, हर वक्त तेरा कोई ऐसा करतब नहीं जो प्रभु की नज़र च ना हो। ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ करके मरना, उसनू हर वक्त अपने सिर ते हाज़र मनना, हर वक्त अपने नाल मनना, ते फिर उत्ते कदे दोष ना लाउणा। ਅਸੀਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਰੱਬ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਣ ਮਤ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਇੰਜ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਕੀਤੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਆਰੋਪ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਵਿਆਖਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੁਤਨ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਟਕਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਰੁੱਖ ਹੈ ਬੋਹੜ ਦਾ, ਅਤੇ ਵਡੇਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੋਹੜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਜੋ ਫਲ ਹੈ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਸੇ ਜਿਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਸਭ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਤੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਖਲਾਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਫਲ, ਬੇਰ ਦੀਆਂ ਗਿਟਕਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਲ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ, ਜੁੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਦਵਾਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪੇਠੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੱਦੂ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਦਵਾਣੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਤਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਫਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਬੋਹੜ ਦਾ ਫਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਗੋਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਲ ਟੁੱਟਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵੱਜਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਕੀਤੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਸ ਪਏ, ਮਰਦਾਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਹੀ ਹੁਣ ਆਈ ਆ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਟੁੱਟੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵੱਜੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਹਦਵਾਣਾ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਚੁਟਕਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇਖਣਾ ਰੱਬ ਜੋ ਕਰਦਾ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਰਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ,
मोती खाने ते बैठ के गल्लां कीतियां। एक गल होर समझ आई कि सानू सत्संगत करन वास्ते किते बहुत दूर जाण दी लोड़ भी नहीं है। ठीक है, सत्संगत लिए आपां धर्मशाला गुरुद्वारा साहिबान चाहुंदे आ, पर असीं अपने किरत दे मुकाम ते बैठे भी सत्संगत कर सकते हैं। रब दीयां गल्लां बैठ के उत्थे कर सकते हैं। उत्थे भी अपने नाल, अपने मुलाजम नाल, अपने संगी नाल, अपने भाई नाल, अपने गाहक नाल, अपने दुकानदार दे नाल असीं उत्थे भी रब दी गल कर सकते हैं। दुनिया भर दीयां असीं चर्चावां करदे हां, निंदा चुगलियां करदे हां, समाजिक ताणे बाणे दे बाबत असीं बोलदे हां ते ताणे बाणे दे तमाम कमेंट्स करदे हां। साडे अज भी किते साडीआं गल्लां नूं आप ही वक्त विच करना, साडीआं गल्लां 'च कि सिस्टम नूं कोस रहे हुंदे आ, असीं ताणे बाणे नूं कोस रहे हुंदे आ, आंढियां गुआंढियां ते कमेंट्स पास कर रहे हुंदे आ कि उहदे थां ते सबजैक्ट बदलिया नहीं जा सकदा। गल है चेतनता दी, अवेयरनेस दी, कि असीं कित्थे बैठे आ, असीं किन झलटी ते बैठे आ, किहड़ा फर्क पैंदा। गुरु नानक कहण लगे नहीं, तुसीं हर थां ते बैठे रब की गल कर सकते हो। उन्हें करके दिखाई है। एक तो उनका केवल उपदेश कर देना, पर गुरु नानक बाबा जी ने सारे उपदेश नहीं दिते, कर कर के जी जी के दिखाए। अपने जीवन के पहले 35-36 साल गुरु नानक पातशाह साहब जी ने साडे नाल वरत के दिखाए, तो फिर आखिरी 18 साल करतारपुर साहिब के रह के इंज 70 सालों की आरजा के विचों सतगुरु पातशाह साहब जी ने, जे पहले आपां बचपन के 15-18 साल कढ़ भी दी कि चलो जवानी की अवस्था होती है, बहुत वड्डियां गल्लां नहीं कीतियां। इधर 18 कुछ साल तो 1800 से 36 कुछ साल महाराज ने सानू प्रैक्टिकल कराए। लमेरा समा बाबा जी ने किया। भाई मनसुख साहब जी ने गुरु नानक साहब के इन्हां बचनां नूं सुनिया। असीं घर वच रहे सां। गुरु नानक पातशाह दा अस सुन मनसुख पाया, वाकई ही हुण मनसुख हो गया। अगे तो ना ही मनसुख सीगा, पर हुण वाकया ही मन दे विच सुख आ गया। नेत्र बंद करके बाबे के बचन सुनी जाता, टिकिया होया रस पी रहे। श्री गुरु भाखण हृदय वसाया। भाखण कहते ने भाषण। गुरु ने जो कथा की, जो साहिब जी ने उस वक्त उपदेश किया, याद रखना कथा कीर्तन देखण का विषय नहीं है, ये सुनन का विषय है। कीर्तन देखा नहीं जा सकता, कथा देखी नहीं जा सकती, ये सुनन का विषय है। क्योंकि ठीक है, जो असी कथा के दरम्यान वक्ता के नाल असीं सामने आई कंटैक्ट में बैठे होने, पर कीर्तन के दरम्यान तो साढ़े नेत्र बंद हो, किते ऐसा होवे। हालांकि ये गल्लां अज साढ़े संदर्भां दे विच दूर हो गई ने, कीर्तनियां दे भी नेत्र बंद होण, ते श्रोता भी आनंद झूम रहा होवे, बिल्कुल शांत, लाइट घट हो के बाद असां की लेना तो, क्योंकि कीर्तन तो सुनन का विषय है, मनन का विषय है। बस टिकाव होवे, कौन आया कौन गया, किधरों आया, उन्हें किहड़े कपड़े पाए किहड़े नहीं पाए, तुसां की लेना है। वो एक अलग लैवल है सारे का, जिन्हां दी ड्यूटीज़ ने, जो प्रबंधकी ढांचे, जो इंतजाम करता ने, वो देखण कौन आया कित्थे बैठा। सत्संगत मनदियां होया असीं हर वक्त इक्को काम ना करिए, जिस स्थान पर बैठे वो काम करिए। जाको आए सोई बिहाजो। जदों प्रबंधक बन के आओ उदों अलग तरीका होना चाहिए, जब संगत बन के उदों अलग तरीका होना चाहिए। असीं हर थां ते एग्जामिनर बने बैठे रहने आ। उन्हें भाई मनसुख जी ने गुरु नानक के बचनों में बिल्कुल शांत हृदय टिका लिया। केतक दिन रहपुर सुल्ताना, कुछ दिन सुल्तानपुर विखेरिया, किरपा पाए अज्ञान नसाना। गुरु नानक साहब की किरपा का पात्र बनया, मन का अज्ञान मिट गया, मन में ज्ञान प्रकाश हो गया। शब्द लिखे श्रीमुख जे भाखे, पहला दर्शन एक विनती कर दिया। आज जो पोथी गुटका साहिबान आज सानू मिलते हैं, इसकी शुरुआत भाई मनसुख जी ने की है।
बेशक असीं बाद विच किते किते गल्लां करदे करदे भाई साहब भाई मनी सिंह साहब जी दे नाल जोड़ दिंदे कि उहदे कोल पोथियां लिखियां नहीं। सब तो पहला गुरु नानक पातशाह साहब जी के बचनों शब्दों जो महाराज जी ने इस वक्त तक उच्चारण किए सन, जो उपदेश वार्तक तौर पर उन्हें मिले सन, वो तिने हिरदे च वसा लए, वो भी नोट किए ने। पर गुरु साहब के शब्दों सब तो पहली बार लिखित रूप च गुरु नानक पातशाह साहब की आग्ञा दे नाल अगर किसी ने अपने को सांभ के रखे तो वह है साडा सब तो पहला गुरसिख भाई मनसुख, जिसने गुरबाणी की सब तो पहला भावें 4 ही शब्द क्यों ना लिखे हो, एक पहली पोथी तैयार की जो जिन्हें अजकल परसनल कह देने अपने वास्ते गुरबाणी की सब तो पहला एक पोथी उन्हें तैयार की। हुण उस पोथी नूं पढ़ें विचारें और हित रखे। जदों उथों महाराज को आग्ञा लैके गए ने, हुण बाकी सारे पूजा पाठ के तौर तरीके छड्ड दिते ने। बाकी सारे जो पहला करते होणगे अपने तवान तरीके होणगे उन्होंने वो तौर तरीके छड्ड दिते ने। हुण करते ने गुरु नानक दे उन्हां बचनां नूं पढ़ते ने, विचारे ने। अज साडे कोल पढ़न ते है, विचारन नहीं रह गया। गुरुदेव किरपा करन असीं गुरु नानक साहब जी के इन्हां बचनां नूं तो सानूं अज प्राप्त रहे तो सहूलत ही बड़ी है। कल्पना उदों कित्थे सहूलत सी, उदों तो एक लिखदा तो दूजा नकल करके लिखदा तां किते किसी नूं शब्द मिलदा। अज तो सानूं लिखे लिखाए प्रिंट कीते पता नहीं कितने कोई प्रोफाइलां साडे कोल गुरबाणी मौजूद है, चंगे तो चंगे लिखे हुए उपदेश मौजूद ने। बस जरूरत है मन के चाव की, जरूरत है मन के भाव की। है विद्या ने टैक्नोलॉजी ने सानूं सहूलत दी है कि उदों देखी किन्ने प्यार नाल शब्द लिखे होणगे, सांभ के रखते हैं, उन्होंने विचार करते हैं। याद रखना दशमेश पातशाह साहब ते एक वचन भी आप हजूर साहब दी गाथावां च पढ़ते हैं। जदों भाई नंदलाल साहब ने कहा सी महाराज आप जी के दर्शन विचार हुण ते आपां कोल बैठे कर रहे तुहाडे कोल, ते तुसीं कहिंदे हो असीं अपने स्वरूप ओले कर लेना है, ते गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे उपदेश कर दिता जे, हुक्म कर दिता जे, तुहाडे नाल गल्लां किवें करिया करांगे। किते मेरे वर्गे दा चित कर आए कि गुरु साहब नाल गलबात करनी है तो किवें करांगा। अज भी साडा तुहाडा चित करदा है, प्यारियां दा करदा है, गुरु नाल गल्लां करिए, किवें करोगे। उस वक्त नंदलाल जी नूं महाराज ने कहा सी नंदलाल जी चेता करना जो मम साथ चाहे कह बात, ग्रंथ दी पढ़े विचार है साथ। दूजा कम विचार है साथ, ग्रंथ दी पढ़े पाठ करे पर विचार करे। महाराज की कह रहे हैं, जिसनों असीं कदे कदे इंज कहदे हुंदे आ किते करके देखना। फुरसत होवे जिस दिन आपदे कोल, मान लो दोपहर 1 घंटा आधा घंटा दो आपदे कोल फुरसत है, कोई पोथी साहब लैके आप जी आराम नाल अपने किसी टिकाणे ते बैठ के जिथे डिस्टरबेंस घट है कोई एक तुक पढ़ दो, जिन्नी कुछ अर्थ विचार समझ आती है, समझ आ गई, फिर नाल सवाल पूछो महाराज इन्नी गल समझ है अगे की करिए, इस तो अगे की होएगा। फिर अगली तुक पढ़ना, फिर अगली तुक पढ़ांगे तो फिर सवाल जवाब जिवें असीं किसी सियाणे बजुर्ग को बैठे हो, अच्छा आपां बातां सुणदे होंगारा देंदे हुंदे सी ना, बचपन दी बातां सुणदे ते होंगारा देंदे सी, ते जे होंगारा नहीं सी देंदे ते बापू बात नहीं सी सुणांदे, कहंदे सी होंगारा दिओ तां सुणावांगे। गुरु नूं होंगारा किवें देने, बोली जाते पाठी कल्ला बोली जाता, कोई होंगारा देने वाला ही नहीं। ठीक है असीं उदां नहीं होंगारा देंदे, पर किते पढ़ के देखिए माई मेरे मन को सुख, किते कह के देखिए महाराज ने गल्लां करके देखी माई मेरे मन को सुख, माई चरण गुरु मीठे, क्या करिए जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुरु सतगुरु संग कीरे हम थापे सच्चे पातशाह तुसां कीता है। हौली हौली ऐसा लगेगा सानू किसी दूजे बंदे की जरूरत ही नहीं पएगी। अज असीं अज इकल्ला महसूस करते हैं, कदे इकल्ले महसूस ही नहीं करांगे, घंटे बद्धी तजुर्बा करके देखना 20-22 घंटे इकल्ले बह सकते हो बिना गलबात कीते किसी तो, बस भोजन प्रसाद चके ने बहुत है।
खैर कर सकीए। पढ़ है विचार है और हित राखे, प्रेम दे नाल पढ़ते ने विचार करते ने। रहत सीख लीनी सुखदानी, सब तो पहला जे गुरु पातशाह साहब जी तो किसी ने जीवन की जुगत, जिन्हों आज शब्द बन गया रहत मर्यादा, रहत मर्यादा के जीवन के बाबत पूछया तो भाई मनसुख ने पूछा, महाराज साड़ी रहत किहो जी होएगी। असी कहने ना रहत मर्यादा चाह करना चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए। रहत मर्यादा में दो ही पक्ष वड्डे होंदे ना, भी आ कर्म करने चाहिए ने ते आ कर्म नहीं करने चाहिए। अज सानू रहत मर्यादा के जो पुस्तकां मिलदियां ने दस्सिया जांदा कि तेरी सामूहिक रहत है, व्यक्तिगत रहत है, पंथक रहत है, ठीक है, व्याख्यावां अलग अलग ने। निजी जीवन की जिन शख्सी रहत लिखिया होया, निजी जीवन मेरा कैसा होना चाहिए है, मैं सवेरे उठ के की करया करा, दिन चढ़े तक की करया करा, मैं किवें पूजा पाठ करा, लोग तो इस तरह करते हैं उस तरह करते हैं। ये तमाम सवाल सब तो पहला भाई मनसुख ने गुरु नानक पातशाह साहब जी तो पूछे, तो पुछ के अपने वास्ते, और वो किसी ते ये नहीं भी तुसीं लागू करो, अपने ते लागू कीते। इदा करना चाहिए भाई। वही रहत मर्यादा जो गुरु नानक पातशाह साहब जी तो भाई मनसुख साहब जी ने सीखी, लिखी, पढ़ी, समा पा के गुरु ग्रंथ साहब महले चौथे दर्ज हुई। असी कदे कदे पढ़ते होवांगे, आपने पढ़िया ना पाठ करते हो, गुर सतगुर काज सिख आखाए, सो भड़की उठ हरनाम ते आवे। इस शब्द को कदे सहज ना ठहर के पढ़ना, क्योंकि हुण तो थोड़े समय दे विच असी सारियां व्याख्यावां करी ते दूर चले जाइदा है। आज सारे को डिवाइस है कि नहीं, सब के कोल अपने अपने जरूरत मुताबक गुरबाणी के इंतजामात। हुण असी ये नहीं कह सकते देखो जी भाई जी ये शब्द सानूं लभदा नहीं है। अज तो बस 4 अखर तुहानूं पता होने चाहिए, पूरी पूरी तुक्कां लभ जांदियां ने। गुर सतगुर काज उसे खा खाए, सो भड़की उठ हर नाम ध्यावै। इस शब्द नूं डिवाइस चों कढ के ठहर के पढ़ना सिख की जो जीवनचर्या है, जिन्होंने आप नितनेम कहने आ। अज असी नितनेम के नाते बहसां करते हैं, झगड़ते हैं, 3 बाणियां पढ़ो, 5 बाणियां पढ़ो, इदां करया करो, इन्ने वजे करया करो। किसी नूं किसी नाल झगड़न ते बहसन की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि गुरु साहब ने कह दिता इदां कर लिया करो। और उत्थों लैके सारे दिन की कहानी उस पावन बचन दे विच दिती हुई है, कदे आराम नाल बैठ के पढ़िए। रहत सीख लीनी सुखदानी, गुरु पातशाह साहब जी की रहत इसने सीख ली। तो मोटी मोटी गल करते हैं, गुरु महाराज ने दी भाई सवेरे उठना है, सिमरन करना है, दिन चढ़े बाणी का पाठ करना। ये गुरु ग्रंथ साहब के मुताबिक है। उठद्या पहला सिमरन करया करो। सब तो उठे हो, ठीक है, अंधकार है, हनेरा है, घर च बहुत सारी बत्तियां बालन की लोड़ ही नहीं। थोड़ा बहुत हाथ मूँह धो के फ्रैश हो जाओ, जे संभव हो स्नान पान कर लो, जिथे उचित शरीर मुताबक बैठ सकते बह जाओ, तो परमेश्वर की आराधना च परमेश्वर के प्यार च बैठ जाओ, सिमरन कर लो। फिर हौली हौली लोह ला के पोथी पढ़ सकते हो। जुबानी बाणी कंठ है तो मुबारक, नहीं तो आप देख के पढ़ सकते हैं। फिर दूसरा स्टैप है गुरबाणी पढ़ना। चढ़े दिवस गुरबाणी गावे। असी इनू अपने तरीके नाल बदल लिया है, पर महाराज के तो बचन इदा ही नहीं ना। पहला सब तो उठ के हरनाम ते आवे, फिर इशनान करके करे भलके प्रभाती, फिर इशनान पान करे। सिमरन का तो इशनान का कोई संबंध बहुता गहरा नहीं है। इशनान पान का संबंध शरीर के स्वास्थ्य से सफाई नाल है, सिमरन दे नाल नहीं है। सिमरन पहला किया जा सकता है, शरीर थके थकाया है, उठे हुए अखां खुल गई, रात नींद नहीं आ रही, कोई नहीं, टेक ला के बह जाओ, वाहिगुरू वाहिगुरू जपना शुरू कर दो। समय के मुताबिक जो तुहाडे दिनचर्या का समा है उदों इशनान पान कर लो। फिर महाराज कहने कि हुण बाणी पढ़। बाणी पढ़ते फड़ते फिर इत्थे आ जाया करो। पहला पहला आपको याद होगा, हुण तो थोड़ा तब्दीलियां आ गई। एक शब्द संध्या के वेले पढ़ते होंदे सी, उन्होंने असीं बड़े ठहर के समझने की कोशिश करते हैं। मान लो इत्थे कोई गुरसिख बजुर्ग आ रहा तो किदां आ रहा, अंतर गुरे आराधना, जिहवा जप गुर नाओ,
नेत्री सतगुर पेखणा, सरवणी सुनना गुरनाओ, सतगुर सेती रतियाँ दरगह पाइए ठाओ। 2-3 तुकां दे विच सारी कहानी समझाती। मनसुख ने सब तो पहला इस रहत ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ। बाबे दे बचन भी उठ के प्रभु की बंदगी करनी, सिमरन करना, संभव हो सके कीर्तन करना, नहीं तो कोई भजन कर लिया। कीर्तन तो भजन च इन्ना को भेद है। कीर्तन वास्ते साजां की जरूरत है, भजन वास्ते साजां की जरूरत नहीं है। असीं इकल्ले बैठ के तरन्नम दे नूं मस्ती विच गा सकते हैं। फिर दे चढ़े दिन लंगर प्रसाद तैयार कर ते क्योंकि दा वड्डपण सी। धर्मशाला दा मुੱਢ दा पहला उपदेश भी मनसुख ने लिया कि तुसीं दिन चढ़े जदों अपने भजन ते फुरसत पाओ, तुसां देग भी तैयार करनी है ते वरतावनी। और जिसका इल्जामत बाद मनसुख जी नूं शिवनाग की कैद विच जाना पिया सी, पर उत्थे भी उन्होंने कीता ते नतीजन फिर शिवनाग गुरु नानक साहब के चरणों का भौरा बन गया। रहत सीखी है श्री गुरु चरण उपासन ठानी, हुण गुरु चरणों का भौरा हो गया। दृढ़ श्रद्धा भी यह करतारा, समझ आ गई ये करता पुरख है, ये गुरु करता है। गुरु करते का वचन ले लिया, उपदेश ले लिया ते पुष्प चढ़ाए नित प्रति पूजे कस चंदन, पुष्प चढ़ाए करहे पद बंदन। हुण तक घर विच मूर्तियां आदक रखियां सी, उन्होंने फुल चढ़ाता सी, उन्होंने मत्था टेकदा सी। हुण वो जो शब्द लिखे ने हुण उन्हां दी पूजा करता है। जिवें आपां प्रकाश करते हैं, मत्था टेकते हैं, हुण तो कोई इन्ना वड्डा इंतजाम नहीं है। 2-4 कागज़ां ते शब्द लिखे ने, उन्होंने मत्था टेकदा है, सिर उठ के अगे फुल धर दिंदा है, क्योंकि ये मानसिक मंडल हो जाए। बाहुर गयो लाहपुर के माही, फिर वो विदा होके लाहपुर चला गया, भाव लाहौर अपने कार विहारां ते चला गया। ध्यान धरे पूजे विधवाही ते गुरु साहिब जी के पावन चरणों का ध्यान धरता रहा। इंज सतगुरु पातशाह साहब जी ने सुल्तानपुर लोधी के मोदी खान के कार विहार दे विच ये साडी मर्यादा साडा मुੱਢ बने है, जो अज धर्मशाला का मुੱਢ भी है, सिख की मर्यादा का मुੱਢ भी है, सिख का गुरु का संवाद का मुੱਢ भी है। इत्थे रहिंदियां रहिंदियां ही जो कई बार गल्लां असीं साखियों च पढ़िया है, पातशाह गुरु नानक साहब जी के कोल कोई मोदी खाने के कार विहारां दे विच किसी सन्यासी ने आके जो भला पुरख सी बेनती की, बाबा मैं एक भंडारा करना है, रब दे नां दा भंडारा। तो बाबा ने कहा ठीक है, भला करना चाहिए, पर कहने लगा जी मेरे को इतना को धन इकट्ठा होया, मैं बहुता मंगता नहीं हाँ, मैं मंगता नहीं हाँ। ये नहीं कि मैं घरों घर जाके लोगों को आ भी दियो, आ भी दियो, आ भी दियो, पर मेरे को इन्ना कि मैं इन्ने क दे नाल करना चाहना कि इन्ने को धन दे नाल भंडारा हो जाएगा, जिन्हों अपन लंगर कहते हैं कि प्रबंध हो जाएगा। मैं चित्त चाहता मैं भी भंडारा करा। गुरु नानक साहब जी ने तो धन वेखिया, धन तो थोड़ा, तो भंडारे वास्ते लंगर वास्ते सामान बहुता चाहिए होंगे। महाराज ने क्या विचादर विछा, मुख सामान दाल चावल आटा ही होंगे ना, मुख सामान आटा है, साजो समान रसद है। महाराज ने उत्थे तोल तोल के पौड़ा शुरू किया। जी साढ़े प्रसिद्ध 13 की घटना वापरती है, कहते हैं उत्ते धन इन्ना कुछ सी कि जो अनाज तोलिया जा सके वो 13 तोल तुल सकता सी। मान लो सिक्के लिए कि 13 सेर, 13 पसेरियाँ, 13 किलो या जो भी सुख छापे की इकाई होगी, वो 13 तोल तोले जा सकते सन। पर महाराज ने पता सी उन्हें जरूरत ज़्यादा है, तो महाराज की करते हैं, एक तो शुरू किया 13 तक तोलिया, तो फिर 13 तो छाबा भर के फिर पाता, फिर 13, पर थोड़ी जी बिंदी हटाती, हुण 13 है। दूजा छाबा भरिया, फिर 13 है, तीजा भरिया, पाई जा रहे ने। वो बंदा टकटकी लगा के देखी जाता कि मेरे पैसे मुताबक तो काम मुक गए। कुछ 2-4 छाबे वध पै कि भला पुरख से उन्हें हाथ रुकता, बाबा नहीं रुक जा, इदा तो तेरा जो मोदी खाना लुटिया जाएगा, 13 इतना करके लुटिया जाएगा। गुरु नानक पातशाह ने उत्थे बचन किया सी, भाई इस तरह नहीं नुकसान होता,
दुनिया जो भी लुटी गई मेरा मेरा करके लुटी गई है। अगर किसी ने नुकसान उठाया तो मेरा मेरा करके उठा। बाबा तेरा तेरा करके नहीं लुटींदा। जिथों साडे घर तेरा 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 असीं 13 नंबर नहीं पूजन लग पे। शायद आपनूं पता होना चाहिए साडे भारतीय दर्शन का एक हिस्सा 13 नूं बहुत सन्मान दिंदा है, खास करके जो साडा पंजाबी हिस्सा है। पर बहुत सारा दुनिया का एक हिस्सा है जो 13 नंबर में चंगा नहीं मनता। साढ़े गुआढ़ी इत्थे ने आपां 13 नंबर सैक्टर ही अगला नहीं बनाउण दिता। वो तो थावां ते अपने जिथे उन्हों का जोर चलता है 13 नंबर सीट नहीं होती उन्होंने मजलसां दे विच उन्हां दे महफिलां दे विच जिथे उन्होंने दफ्तर होंदे ने 13 नंबर सीट नहीं पाउंदे। 12 पा के 12 ये पा देंगे, अगां 14वीं लै जाएंगे, क्योंकि वो 13 तो क्योंकि उन्होंने अपने मंडल ने 13 उन्होंने माड़ा मानते हैं, क्योंकि उन्होंने साढ़े बाबे ने 13 करके दिता है। तो आपको पता है उन्होंने बाबे के नाल शहादत के मुकाम ते बंदे सन, वो भी 13 सन, तो साथ छड़ के भज गए सन। यहो जिही कुछ गल्लां एक दूजे नाल जुड़ियां रहिंदियां ने। ये साइकोलॉजिक प्रभाव साडे ते बाद पैण लग पैंदा है। गुरुदेव किरपा करन सी इन्हां गल्लां हौली हौली समझ सकीए। बाबे ने सानूं दिता है, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। सारा कुछ करता पुरख का करतार दा है। इत्थों हौली हौली बाबे नानक जी ने सुल्तानपुर विखे रहिंदियां मोदी खान की किरत की। हुण अगे आपां अगली जो कल नहीं परसों तो गाथा आरंभ करांगे, वेई विखे प्रवेश गुरु नानक पातशाह ने करना है। वो सारे घटनाक्रम साखी नूं आपां हौली हौली समझने की कोशिश करांगे। बेनती करा कि कल संगरांद का दिन सवेर ते शाम के दीवान प्रोग्राम्स लिखे गए हैं, इश्तिहारां दे राहीं बाहर बैनर्स राहीं डिटेल्स ने, बड़े कीर्तनी प्यारे ने। भाई जसवीर सिंह जी पौंटा साहब बड़े प्राचीन मर्यादावां ते परंपरावां ते बंदिशां का कीर्तन करते हैं। वो सामने 7:30 तो 8:30 में कीर्तन करना है। उस तो पहला 7 तो 7:30 आपां राग तुखारी गुरु नानक पातशाह साहब जी की अमृत बाणी तुखारी राग दी जो 12 माह है वो विचार करांगे। आप सारे ने समय सर हाजिरी भरते हैं गुरु की बख्शिश प्राप्त करनी। भुल चुक दी खिमा आसीस ते प्यार दे फतेह बुलावना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।